विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये सदन की गरिमा मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो व्यक्तिगत टिप्पणियों और किसी जाति, समाज, महिला, पुरुष सब पर व्यक्तिगत टिप्पणियों से अपने भाषण के अंदर बचना चाहिए। सहमति, असहमति, सकारात्मक रूप से व्यंग्य भी हुए हैं यहाँ पर, लेकिन एक विशेष तरीके से टिप्पणी ये संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्य ने भी इस बारे में वहां पर सदन में क्षमा मांग लिए और लिखित में मुझे दे दिया है। प्लीज क्वेश्चन नंबर 241 श्री शबी परिमल। सर क्वेश्चन नंबर प्लीज बैठिए। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 241 जवाब पटेल पे लिखा। माननीय सदस्य। Thank you, Honorable Speaker, sir, for the opportunity. Sir, I would like to bring to your attention through this House about the difficulties faced by the people of Vadagara constituency due to the ongoing construction works and its delay of the national highway, sir. Sir, we have so many issues regarding underpasses, overbridges, the width of service roads, so many junctions being embankments, and so many other issues. Sir, places like Tikodi, they are protesting for more than 1 year for allotting an underpass in the town where there is a railway station, where there is school, where there is masjid, where there is temple, and so many other things including the people's market. Sir, I'll come to the point. Sir, will your good self, including Tikodi, Anela, Ariyur, Pandalayani, and so many other Nandi, so many other issues, will your good self order a high-level meeting to be convened to discuss these difficulties, and including Vadagara Junction? Okay. Sir, can you take can you take appropriate action to settle this issue, sir? Honorable Sir, regarding these problems, the Kerala is in such a situation that in Kerala the whole development is roadside development. One side school, one side colleges, a residential area is there. So everyone is demanding for underpass. If suppose we are going to implement, we have to make the road of underpass. And that is to be a big problem. So somewhere when the road connectivity is there, we can make it. Somewhere because of the education institution also we consider. Even many of the member of parliament from Kerala many times come to me, and that is not up to the criteria also we sanction that. But regarding this issue, I will call honorable member. Again, I will go through all the problems which already he present here, and I will try to find out the way out positively that how it can be helpful for him. Thank you. Honorable supplementary. Sir, there is yet another long pending public demand for an alternative road to existing Tamarasheri Get Road, connecting Wayanad and Kozhikode district. Sir, it's a part of National Highway 766, Kozhikode-Kollagan. Okay. Sir, there is a proposal that has been proposed since 1993, sir. A Padinyaratara Purithod for a greenfield highway. It's a matter of just 8 kilometers land, sir. If the central government can involve and settle this issue, this will be a great blessing for an alternative road to the Gut Road, where landslides, landslips during monsoons are a common practice. And even the narrow width of the road is creating havoc in traffic, sir. Okay. This is a much demanded and much awaited proposal. This Padinyaratara Purithod road, if you can start an inquiry and investigation on this, this will be much helpful for the people, sir. Honorable Sir, this is the question is only related with the port connectivity highway corridor in Kerala. It is neither refer directly or indirectly to any other project. But this alignment is being figured. It is to be still in the process. Again, when I have a meeting with him, I don't know the details about it, but at that time we will discuss. And I always positive about the considering the convenience of the people by and large. I will try to find out the option and try to help. Sri E.B. Idanji. Sir, thank you, sir.
Sir, as the Honorable Minister have mentioned, the question is extremely related to the National Highway 966. As you already know, you were the Shipping and Port Minister, and you know the importance of the Kochi Shipyard Limited, which we are all proud to say that which built the first indigenous aircraft carrier INS Vikrant for this country. Sir, Cochin Port has an historical importance, sir. Sir, ये जो highway है आपने propose किया है, which is connecting the Nattur Junction, Vaitila, Arur, to the historical Cochin Port, which has very much significance in the construction. So, will this be a major interactive area where a clovelly flyover is built? Because it also intersects with the National Highway NH66 and NH66B. So, how is the project in process? How is the design? And we all know that port is in a very bad shape. Cochin Port is in a very bad shape. This highway would be extremely helpful for the development of the port also, sir. Sir, this is the first time when after the government under leadership of Prime Minister Modi ji, we have decided to giving highest priority for the port development in the country. Anywhere in the world, in any country, the growth of that country is depending upon the ports, and that is very important. So in my ministry, actually previously I was a shipping minister. At that time, the Cochin Shipyard is the flagship company of our government, and now that company is doing really very, very miraculous job, and they are well reputed, recognized in the whole world now. At the time it is to be, when it is going for capital market, there was very, very big response from the people of India. So no doubt, at that time we have also given some land to Cochin Shipyard in Cochin Port. But Cochin Port was making losses because there was big refinery at the old government constructed, but the pipeline was the problem. And 10 years I constantly pursuing, but this is the first time. Now the present Chief Minister has taken the interest and he complete that gas pipeline, and that's the reason now the economic viability of the Cochin Port is increased. So regarding the port connectivity, we have overall 108 port connectivity projects. The cost is 1,25,000 crore, and already we have decided to construct all this project, out of which this Mumbai-Kanyakumari highway, NH 966B, there is a spur we need to make Nettur to Vittila Arur bypass with CIFT junction in Wellington Island is very important. The DPR is in the process. Within a month we will get the DPR, and immediately we will go for the tender and we will start this project. And at the same time, there are also 3 port connectivity projects in Kerala, that is 4 laning of NH 96B connecting Wellington Island to Kundanur, and the second is Alappuzha. This is non-major port providing ramps to the 6-lane elevated highway being developed from the Alappuzha beach, earlier road from State Highway, Alappuzha bypass intersection. And the third is Alikkal, that is also non-major port, and Azikal port proposed NH bypass and widening of 2 kilometers. So all 3 projects are in the DPR process. Within a month we will get the final DPR, and after that we will start with it. Shashi Tharoor ji. Honourable Minister has forgotten one more, which is in the Vizhinjam port in my constituency, sir. As you know, the government is supposed to have worked with the state government, with the NHAI, to expedite approvals for interim and permanent cloverleaf intersection road connectivity to the Vizhinjam International Seaport, which, as you know, is supposed to be commissioned next month, sir. So there is a big lag between the progress in commissioning of the port and the need to modify the existing National Highway 66 in order to construct the highway to give us the port connectivity, which is this question that is before us, sir. What steps are you being able to take, sir, with the state government and the NHAI to ensure that this is done in a timely manner? Otherwise, we'll have a port and no roads to take the goods inside the country. Thank you, sir. Honourable Sir, what Mr. Shashi Tharoor is telling is very, very important. And at the time when I was shipping minister, I sanctioned that port. The problem is that the port as a private party taken by Adani Port.
And now previously they have already committed me that they will make that roads. But now presently they are back out, and now there are some problem. Just 4 or 5 days before, I have a long meeting with the Chief Minister, and we are now calling them. I will find out some way out, because you are very, very important, as without road connectivity, there is no use of the port. So within 8-10 days, I will find out the way out. Already it is in the process, and we will do it. क्वेश्चन नंबर 242 श्री अमिंदर सिंह राजा वारिंग। माननीय मंत्री जी। विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है। श्री मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल लुधियाना से संबंधित है, पर मैं आपकी अनुमति से थोड़ा सा एक व्यापक सवाल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। 8 अप्रैल 2022 को जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्थायी समिति है, उसने लघु और छोटे उद्योगों के ऊपर एक रिपोर्ट इस सदन के पटल पे रखी थी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो क्रेडिट गैप है एमएसएमई सेक्टर में, छोटे और लघु उद्योगों में, वो 20 से 25 लाख करोड़ का है। सिर्फ 40% ऐसे छोटे और लघु उद्योग हैं जो औपचारिक वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे फाइनेंस लेते हैं। और इस चीज से निजात पाने के लिए उस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई थी कि जैसे आपके किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसी तरह से आपके व्यापार क्रेडिट कार्ड्स की स्कीम को शुरू किया जाए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 30% जो भारत की जीडीपी है वो लघु और छोटे उद्योगों से आती है। 45% जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो छोटे और लघु उद्योगों से आती है, और 48% जो आपका एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई सेक्टर से आता है। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो 8 अप्रैल 2022 की फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें हैं, उसको आपके मंत्रालय ने लागू किया है कि नहीं किया है? मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्य महोदय को कि जो हमारे एमएसएमई विभाग के बारे में, चाहे एक्सपोर्ट का मात्रा हो या व्यापार नौकरी देने का मामला हो या जीडीपी का मामला हो, उस पर उन्होंने एक अच्छी टिप्पणी की है। इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। महोदय, क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से ऋण के विभिन्न श्रेणियों के लिए 85% तक की गारंटी कवरेज के साथ साथ एमएसएमई को 500 लाख रुपए तक की सीमा का कोलेट्रल मुक्त ऋण सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी का सीमा के तहत है। गारंटी सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपया कर दिया गया है, और दिनांक 1/4/23 से वार्षिक गारंटी फीस के लिए स्टैंडर्ड दर 50% कम कर दिया गया है। सर, क्वेश्चन नंबर 243 श्री राजकुमार चाहर। ये लुधियाना से संबंधित है, केवल लुधियाना से। ये परिप्रेक्ष्य में होता तो ठीक था। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं एक बहुत ही जनहित के मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मोटर अधिनियम 1988 की धारा 162 के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में घायल के इलाज के लिए कैशलेस की व्यवस्था की कि उनका इलाज हो सके। लेकिन ये 6 राज्यों में मान्य किया गया। इसमें आयुष्मान भारत के अंतर्गत पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ये योजना लागू की गई। लेकिन ये
आसाम, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पुडुचेरी, उत्तराखंड सहित केवल 6 राज्यों में है। वहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि कैशलेस इलाज में जिन मरीजों के गंभीर दुर्घटनाओं में जो घायल हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उनके सिर में चोट आ जाती है, कई जगह फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसमें एक बाध्यता भी है कि दुर्घटना के 7 दिन के भीतर और 1.5 लाख रुपए तक का ही इलाज हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या ये योजना पूरे देश भर में लागू की जाएगी और 7 दिन और 1.5 लाख की जो बाध्यता है उसको क्या समाप्त करके उसको ओपन किया जाएगा? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। 4,80,583 क्रैशेस हुए और मरने वालों की संख्या जो 1.5 लाख थी वो 1,72,890 हुई है। नीति आयोग और एम्स के रिपोर्ट में ये आया है कि 30% ऑफ द टोटल डेथ जो है वो ड्यू टू जो मेडिकल इमरजेंसी में जो सर्विस मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट जिनका होता है उनको न मिलने के कारण मृत्यु होती है। और इसलिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी होगा उतना 1.5 लाख रुपए तक वो उनको तुरंत मिल जाएगा। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है आयुष्य का और हेल्थ कमीशन का, स्टेट गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और उनके कॉर्नर पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसी, तुरंत ये पैसा मिलेगा। सम्मान्य सदस्य ने जो कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पांडिचेरी यहाँ स्कीम शुरू हो गई और 2100 लोगों की जान इसमें बची है। और अभी मैक्सिमम ट्रीटमेंट अमाउंट जो है वो केवल 1,25,000 रुपये तक देनी पड़ी है। मैं उनको और बताना चाहता हूँ कि तुरंत ही उत्तर प्रदेश में ही, सम्मान्य सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं, इसकी शुरुआत हो रही है और अगले 3 महीने में ये पायलट प्रोजेक्ट सेट हो गए लगभग। इसके बाद पूरे देश में इस योजना की शुरुआत करेंगे और ये जिनका एक्सीडेंट होता है उनको ये तुरंत पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट अगर मिलती है गोल्डन आवर में, तो मुझे लगता है अनेक लोगों की जान बचने में उपयोग होगा। मैं आपके मार्फत फिर से एक बार सदन के सम्मान्य सदस्यों को अनुरोध करता हूं कि हमने हर संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक एक्सीडेंट निवारण कमेटी हर जिले में बनाई है। कलेक्टर उसके सेक्रेटरी हैं और हर जिले में इतने लोग मर रहे हैं, ना लड़ाई में मरते हैं, ना कोविड में मरते हैं, ना दंगों में मरते हैं, 1,78,000। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये जो ब्लैक स्पॉट से बाकी सब बातें हम कर रहे हैं, आपके अध्यक्षता में आप इसको मॉनिटरिंग करिए। पुलिस को, स्टेट गवर्नमेंट को, NHI को, सबको आप आदेश दीजिए, हम सुधारेंगे उस पर। आप दोबारा एक बार सबको लेटर लिख दें। कई सदस्य की मीटिंग बुलाते नहीं हुए, तो एक बार दोबारा पत्र लिख दें। मैं दोबारा पत्र लिखूंगा और आपके जिले में ये एक्सीडेंट कम हो, इसके लिए आप सब लोग सहयोग करें और इन लोगों की जान बचाएं। मैं और आपको एक दुखद बात बताना चाहता हूं कि ये जो 1,78,000 लोग मर रहे हैं उसमें से 60% लोग 18 से 34 एज ग्रुप के हैं। यंग लड़के हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है। कोई रास्ते पे जाते जाते स्कूटर पर हेलमेट न पहनने के कारण 30% लोग मर गए। रेड सिग्नल है, पालन नहीं करते हैं। अभी भी कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था है। आपके सहयोग से आप जरूर करिए, ये मैं आपके मार्फत सदन को आह्वान करता हूं और आपने जैसे आदेश दिया है मैं तुरंत फिर से पत्र लिखता हूं। सप्लीमेंट्री है? नहीं, बोल दिया। नवीन जिंदल जी। सतीश गौतम। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मोटर व्हीकल के संशोधन एक्ट में नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड की स्थापना की बात हुई थी, इसका स्टेटस क्या है और कब तक इस बोर्ड की स्थापना होना अपेक्षित है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये पिछले 6 साल पहले ये बोर्ड करने का निर्णय हुआ। उसके बाद में इसके ऊपर रिटायर्ड सेक्रेटरी अपॉइंट करना, वो कौन से ग्रेड का होना,
तो अभी भी मुझे दुख है कि अभी तक पूरे अप्रूवल नहीं मिल पाए और इसके कारण ये बोर्ड का गठन नहीं हो पाया, पर मैं जल्दी ही कोशिश करके इसको करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 244 244 गुरमीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 244 सर। माननीय मंत्री महोदय। आप पटल पर रखें। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, आप अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं और आपने बहुत अच्छे हाईवेज पूरे देश में बनाए, लेकिन उन हाईवेज की वजह से गाड़ियां 110, 120, 150 तक भी कुछ लोग चलाते हैं। और अभी आपने जिक्र भी किया कि तकरीबन 1.25 लाख लोगों की मौत हर साल हो रही है और पिछले 10 साल में तकरीबन 15 लाख लोगों की मौत सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स के कारण हो गई और डेली लगाएं तो 400 लोगों की मौत हो रही है। और माननीय मंत्री जी, पंजाब में पिछले एक साल में अगर हम कंपैरिजन करें 2023 से, तो जो एक्सीडेंट्स का डेथ रेट है वो 47% कम हुआ है। उसका रीजन है कि हमने एक डेडिकेटेड फोर्स, सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब में लगाई है। उसमें 1600 पुलिस ऑफिसर को डिप्लॉय किया है और हर 30 किलोमीटर के बाद एक टोयोटा की तकरीबन 40 लाख की गाड़ी लगाई गई है और उससे 47% जो डेथ रेट है वो कम हो गया। सो मैं मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं, क्या केंद्र सरकार भी आने वाले समय में कोई ऐसी डेडिकेटेड फोर्स का गठन करेगी कि जिससे रोड एक्सीडेंट कम हो सके? सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये जो एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। जो कानून बनाने के अधिकार राज्य सरकार को है उसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है, जो भारत सरकार बनाती है उसको सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है और जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों करते हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में है। मैं पंजाब सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पॉजिटिवली प्रयास किया। आसाम सरकार ने भी एक्सीडेंट्स कम किए, पर मैं आपके सामने ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या पे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, 23,652, टोटल एक्सीडेंट के 13.7%। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, 18,347, 10.6%। तीसरा है महाराष्ट्र, 15,366 यानी 9% और मध्य प्रदेश 13,798 यानी 8%। मैं विशेष रूप से इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, एक से या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं भी लखनऊ गया था, मेरी डिटेल बातचीत हुई, उन्होंने इसको सीरियसली लिया है। बाकी भी मुख्यमंत्रियों से बात करके इसके लिए कोशिश करेंगे। सिटी जो है भारत की जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का डेथ होती है, उसमें पहले नंबर पर दिल्ली है, 1,457 डेथ दिल्ली में होती है। बेंगलोर में 915, जयपुर में 850। और मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भारत एनकैप करके रेटिंग शुरू कर दिया। इकोनॉमिक मॉडल में 6 एयर बैग्स लगने लगी, पूरे ऑटोमोबाइल सुधार कर दिए। रोड इंजीनियरिंग में कमियां थी, 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट इंप्रूवमेंट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स हमने दूर किए। पर इसमें 59% एक्सीडेंट्स ये एनएच पर हो रहे हैं और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। और इसका कारण जो है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है तो हमारी सिस्टम ऐसी कि जो लोवेस्ट आता है उसके गले में माला पहनाते हैं और इतने घटिया क्वालिटी के वो डीपीआर बनाते हैं और जिसके कारण फिर आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी हमने ये सिस्टम को भी जो लोवेस्ट वाली बात थी उसको बदल कर उसका भी हम रेटिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर का भी रेटिंग कर रहे हैं और डीपीआर वालों का भी कर रहे हैं। और अभी तो मैं रोज 4-4, 5-5 कॉन्ट्रैक्टर, कल ही मैंने 5 लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को और कंसल्टेंट को और अधिकारियों को जो भी निग्लिजेंस बताएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में कोई सहानुभूति किसी के प्रति रखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों की जान बचाना आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देश में 18 लाख ड्राइवर्स की कमी है और ये जो एक्सीडेंट हुए हैं इसमें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और जो आजकल क्या बताए अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है। हम दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में
ऐसा जो देश है नंबर 1 पर, जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। हम इसको सुधार रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इसको काफी स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि भी हमने एक तय किया है कि मैं सब मेंबर साहब को आह्वान करूंगा कि मैं आपको ड्राइविंग सेंटर, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और फिटनेस सेंटर हर जिले में, हर तालुका प्लेस पे एक एक शुरू करने की योजना हमने बनाई है। उसमें आर्थिक मदद कर रहे हैं, करीब 75 हमने खोले हैं, अभी हमको 1000 खोलने के हैं। आप आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आप प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आइए, मेरे पास एक स्कीम लेके जाइए और ट्रेन ड्राइवर बने। विशेष रूप से ट्राइबल एरिया जो है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, रूरल एरिया है, जहां एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहां फिटनेस सेंटर और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का कॉम्बिनेशन हमने किया है। 8 दिन में वो स्कीम को हम डिक्लेयर करेंगे और आप इसमें आकर ट्रेन ड्राइवर भी तैयार होंगे और फिटनेस के कारण 15 साल के बाद जो गाड़ियां बाद में स्क्रैपिंग करनी है, उसकी सुविधा प्राप्त होगी। दोनों में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में इस उपक्रम के लिए आप सहयोग करें, ये भी मैं अनुरोध करता हूँ। श्री गौरव गोगोई जी। हाँ, आपका सप्लीमेंट्री। धन्यवाद मंत्री जी। सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसे जो विकसित देश हैं, जैसे जापान है, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया है, तो उन्होंने कि 0 डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स कोई टाइमलाइन तय कर दी है। क्या हमारी भारत सरकार ने भी कोई टाइमलाइन तय की है कि 0 डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स में हो? इस कंट्री में सम्माननीय स्पीकर महोदय, मैं उनकी भावना को समझता हूं और मैंने 11 साल हुए इस मिनिस्ट्री में। स्वीडन ने 0 किया है, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूं, इसलिए सीधी बात बता देता हूं कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। और ये एक ही सब्जेक्ट है कि जिसमें हमारे डिपार्टमेंट को सफलता नहीं मिली। उसके वेरियस रीजंस हैं। मैं आपको यही बताता हूँ कि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, तब तक ये मुश्किलें हैं। आप सबके सहयोग से पहला तो टारगेट हमारा फेल हो गया और उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सच्चाई है। पर इसके बाद फिर हम तेजी से और काम को लगे आपके सहयोग से। हम निश्चित रूप से आगे कोई टारगेट तो तय नहीं किया, पर कम करने की लगातार कोशिश करते हैं। और मैं इसलिए संवेदनशील हूँ कि मैं एक एक्सीडेंट का भुक्तभोगी हूँ। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, विधानमंडल में, और पुलिस प्रोटेक्शन में पुलिस की सायरन वाली कार के साथ मेरे ड्राइवर को कैटरैक्ट था। मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बेटी पूरे ट्रक के नीचे चले गए। वो टायर के कारण, जो पीछे लटकता है, उसके कारण जान बची है। और मैंने 2 साल में हॉस्पिटल में था। तो मैं इसके प्रति तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हूँ। पर दुर्भाग्यवश बहुत कोशिश करने के बाद भी जो कम ही है तो हुई नहीं, उल्टी बढ़ी है। ये चिंता का विषय है। आप सबके सहयोग से इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्नकाल के समय चंद ही एक मंत्री हैं जो अगर समय भी ले तो हमें कोई आरोप नहीं, हमें कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि पूरी जो आपकी बात होती है सकारात्मक होती है। रोड एक्सीडेंट्स के मामले में आपके उत्तर में विवरण है कि असम में लगभग 27,000 एक्सीडेंट्स हुए हैं और ज्यादातर एक्सीडेंट्स उसी चीज के कारण हुआ जिसमें आपने अपने खुद का उदाहरण दिया कि ये ट्रक ओवरलोड होके आते हैं, बड़ी स्पीड में जाते हैं और रात के समय जब फॉग, और विशेष रूप से अब जो फॉगी कंडीशंस होते हैं शीतकालीन समय में, वो रात के या सुबह के 1 बजे 4 बजे जब जाते हैं, तो क्या आपकी मंत्रालय क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में? क्या जो लाइटिंग के संदर्भ में क्या हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग जगह पे लाइटिंग डाल सकते हैं? क्या अलग अलग जगह पर लॉ एंड ऑर्डर कॉन्करेंट है क्या, लेकिन क्या आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं ताकि जानकारी पुलिस तक पहुंचे, डेटा आपके पास रहे और जानकारी पुलिस तक पहुंचे ताकि जो भी ट्रक ओवर स्पीड कर रहा हो उसको हम पहले ही रोक ले? क्या इस प्रकार की कोई सकारात्मक सोच? और सर, एक और कारण मेरे क्षेत्र में ये है और आपको भी पता है कि जोरहाट के लोकसभा क्षेत्र में वो
कितने साल हो गए, कितने कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गए, लेकिन वो NH-37 हमारा संपूर्ण नहीं है। बहुत खराब वहां पे डिजाइन है, जिसके कारण ट्रक्स और ये लाइटिंग के कारण बहुत ही वहां पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो जोरहाट में क्या आप डेडलाइन, क्या आपकी मंत्रालय अभी कोई डेडलाइन दे पाएंगे कि वहां अधिकार लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का होता है। अभी हमने एक इससे तंग आकर एक नया टेक्नोलॉजी करके नियम